Okay, so let us start. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. See, today we will learn dowel bar design. Okay, and this is the last method, or we can say this is the second method of your dowel bar design. In the previous method, we have learned, we have used Bradbury's analysis, and we have also discussed the different steps. Okay, how we will follow those steps and design dowel bar. Now in this method we have to design length, spacing and diameter of the dowel bar. Okay, but here we are using some different formulas which are given, which are, you need not to remember those formulas, it's already provided in your IRC 58. But in case of old method, you have to remember those three formulas. Okay, and also the design step. But in IRC 58, this method, Okay, ma'am. it is already, the formulas is already provided in the IRC 58 itself. Okay, so this is the code that we will use for whatever type of the design, whether it is tie bar design, your dowel bar design, or the rigid pavement design. Okay, all the charts, all the equations are which will be using for designing all the components of rigid pavement is given in this code. Okay. Yes, ma'am. Now we know that dowel bar will transfer 40% of load. Suppose here is the wheel. Okay, so suppose wheel load is P, which is applying on this slab. Total group of suppose here 4 groups of dowel bar are there, so these 4 groups of dowel bar will transfer 40% of P from this slab to this slab. We have already known that. Okay, and we have also known that what is the effective distance where your transfer of load will be 0. Okay, that is from edge Yes, first center, we can say this is from center of the first dowel bar from the edge, it will extend till length, till distance of L or 1.8 L. We already know that. Okay, now L is what? L is your radius of relative stiffness. Practically, theoretically, that value, that distance is equals to 1.8 L, but practically it will be lesser than 1.8 L. Okay, which is 1 L, 1 times of L. In our old method, what we did? In our old method, we have taken this length, see, this length as 1.8 times of L. Okay, but in this method, since this is the modification or modified method or new method, okay, so here they have reduced this value from 1.8 L to 1 L. Okay, so others it is same. See, instead of 1.8 L by L, it is L by L minus S by L, like that only. Okay, and we have yes, to ma'am. use, okay, see, the load transferred by the first bar is what? From the edge, it is PT. If it is PT, P suffix T, okay, and the load transferred by the second bar, adjacent second bar will be this much. Okay, PT L minus S by L, where S is the spacing and L is the radius of relative stiffness, and the load transferred by the third bar from the edge is PT into L minus 2S by L. So it will keep on to add on here ns. See, n is equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, it will keep on increasing, and we know that we will, how many times we will add till this value becomes 0 or negative. We have to keep on adding those values. Okay, in order to get Yes, ma'am. total load transfer by this dowel bar group. Okay, so what is the total load? If suppose here 1 2 3 4 bars we have designed. Okay, so what is the total load transfer by this total 4 number of bar? Is PT plus PT into L minus L by L plus PT into L minus 2 by 2S by L and PT into L minus 3S by L. If we sum up this, all this load, that will give you how much value? This is the total load transferred by this group of dowel bar from one slab to another. Okay, with respect to L, S and PT. Okay, which is this one. See this one, PT plus PT L minus S, this one. This is the total load transferred. Okay, and we also know from the design that
it will total load that will be transferred by this group of dowel bar is 50% of the, not axle load, it is wheel load. Okay, 40% of the design wheel load. So we have to equate these two value in order to get this PT value. Okay, L will be known to us, S will be known to us, and 40% of P, that is a design wheel load, will also be known to us. So the only unknown value here is what? PT. So I will show you where we are using this equation. We will see we have to use this equation to determine PT. Okay. Now, as per the Yes, new method, these are the specifications. Okay, we already know these are the specification of the dowel bar. See, diameter must lie between, diameter of the dowel bar must lie between 2.5 centimeter to 3.2 centimeter or 25 to 32 millimeter. This is already known to us. Length should not be greater than 50 centimeter or 500 mm. Okay, and spacing should lie between two. Spacing means what? Center to center distance between two dowel bar. Okay, center to center distance means what is the gap between this each dowel bar. Okay, that is the spacing. So spacing is how much? Spacing is your 250, or we can say 25 to 30 centimeter. Okay, these are the specification. We have to design. That means first what we will do, we will assume this parameter, then we will check whether the design parameter is safe or not. Okay. So in this method, we have to determine two types of stresses. Okay, first is your maximum bearing stress, which is SBM. Okay, and second is your this allowable bearing stress, FB. Okay, so we have to calculate these two values, SBM and FB. See, for SBM, we have to use this equation. See, SBM, we are using this equation. Okay. Sorry. See, SBM, we are using this equation, and for FB, we are using this equation. Don't worry, you need not to remember this. It's already given in IRC 58. See here. In fact, one example they have already solved also. Okay, in the last, somewhere in the last portion, they have already solved this equation, this type of equations. Okay, see here. Design of dowel bars. Okay, so this is the FB equation. Okay, and this is your that equation. Okay, this one, SBM equation. So it is already given to us. Okay, and if by chance, see, in your exam, it may happen that they will not allow this last page. Okay, so they will tear this page, or they will ask you to remove these pages. Okay, in that case, then you have to remember these values. I mean, remember these equations. Okay, the SBM is equals to, now what is SBM and what is your FB? Okay, same. In the last lecture, what we were calculating, we were checking two value. What is that? Actual capacity factor and required capacity factor. Okay, actual capacity factor is what? Due to load, how much it has to transfer. Okay, whatever load is coming, how much it has to transfer is the actual. Okay, and RCF, actual is what? Actual is the how much it can transfer, and required is how much it has to transfer. Okay, required was your semester paper, how much you have to get marks in your semester so that you can pass the exam, that is the RCF. Okay, and ACF was your what is your preparation, how much is your preparation. Okay, obviously your preparation ACF must be greater than the toughness of the semester paper. Similarly, here also we have to see that this allowable FB must be greater than SBM. Okay, FB is your preparation and SBM is your toughness of the semester. See, it's already given here, S also. Okay, so you can remember like this also. So FB is your preparation and SBM is the toughness of the semester. Okay, so you can remember like this also. Okay, now why it is toughness, or we can say why we are telling that this is the toughness of the semester paper. It is, we are giving example of that one. Okay, because here see, this stress is developed due to the external load, which is PT. Okay, we know that PT is what? PT is the
see PT is the load transfer by the first dowel bar. Okay, that means it is dependent, this PT is dependent to this wheel load. Okay, if the wheel load is very high, your PT should also be high only. Okay, and since all the rest other load transfer is related to the PT, see here, यहाँ पे देखो, this is what, this is the load transfer by the first bar. Okay, load transfer by the second bar is something times of the PT. मतलब ये क्या है, सेकेंड बार कितना ट्रांसफर करेगा, कुछ ट्रांसफर करेगा, PT का कुछ पोर्शन ट्रांसफर करेगा. ठीक है, मतलब सपोज ये 100 कर रहा है तो ये बोलेगा 80 कर रहा है, मतलब इसका 80% ट्रांसफर कर रहा है, फिर इसका कितना 70%, फिर इसका 60%, ऐसा बोल रहा है. ओके, सो इट इज रिलेटेड टू PT. सी दिस इज द लोड ट्रांसफर बाय द सेकेंड बार. सिंस यहाँ पे PT है, मतलब क्या है, इट इज अगेन दिस वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन PT एंड वी नो दैट PT इज डिपेंडेंट ऑन योर व्हील लोड. ओके, सो एक्सटर्नल लोड की वजह से कितना स्ट्रेस आ रहा है इन सब डावल बार के ऊपर इज द SBM. ओके, एम आई क्लियर? सो PT क्या है, लोड की वजह से क्या स्ट्रेस डेवलप होगा. See here, since here load is one factor which on SBM के इक्वेशन में एक लोड इज वन फैक्टर जिसके ऊपर ये SBM का वैल्यू डिपेंड करता है, राइट? दैट मीन्स व्हाट, लोड बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लोड कमेगा तो ये भी कमेगा. सो क्या है, इट इज बोथ आर रिलेटेबल, राइट? सो PT क्या है, एक्सटर्नल लोड की वजह से जो आ रहा है. ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज व्हाट, ड्यू टू लोड व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड. ठीक है, ये है ड्यू टू लोडिंग कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है. सो दैट इज SBM. ठीक है, मतलब कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, बाहर से प्रेशर आ रहा है, तो जो टेंशन की वजह से हो या कुछ की वजह से भी हो, वो प्रेशर कितना है, एक ये है SBM है. ओके, नाउ FB क्या है, FB इज योर प्रॉपर्टी, कि तुम्हारा कैसा वो टेंशन लेने का कैपेसिटी कितना है, दैट इज FB, राइट? तो क्या होगा, अगर बाहर से जो टेंशन है जो भी है, ठीक है, उसकी वजह से जो तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा है, जितना तुम ले सकते हो उससे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो क्या रहा, यू विल ब्रेक डाउन, राइट? यू विल ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन मतलब फेल हो जाओगे. तो सिमिलरली तुम्हारा डाउल बार के ऊपर तुम्हारा प्रेशर कितना आ रहा है, बाहर एक्सटर्नल लोड की वजह से ये वाला है, और इसका खुद का कैपेसिटी कितना है, मैक्सिमम ये कितना ले सकता है, ये है FB. ओके, तो सेफ होने के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली इसका जो स्ट्रेंथ है, राइट, FB का जो स्ट्रेंथ है, इट शुड बी ग्रेटर देन योर स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट? इसीलिए फॉर डिजाइन टू बी सेफ वी हैव टू चेक वेदर आवर FB इज ग्रेटर देन SBM और नॉट. ओके, अब ये जो FB SBM हम लोग वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे, कुछ नहीं है, सिर्फ तुमको SBM निकालना है, FB निकालना है. ठीक है, तो इसमें डिजाइन का क्या है, तो डिजाइन का यही है कि एवरी इक्वेशन में देखो, सब इक्वेशन में तुम्हारा पैरामीटर्स, मतलब डावल बार का डायामीटर लग रहा है, डावल बार का लेंथ लग रहा है, ठीक है, डावल बार का स्पेसिंग लग रहा है. ठीक है, सो ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमको डावल बार का जो जो पैरामीटर्स है, वी हैव टू एज्यूम दोज डाटा एंड फाइंड दिस वैल्यूज. ठीक है, फिर देखना है कि जो भी हम लोगों ने एज्यूम किया है, विद द डायमीटर, स्पेसिंग, लेंथ, जो भी एज्यूम करके हम लोगों ने ये फैक्टर्स, मतलब ये जो स्ट्रेसेस का वैल्यू निकाला है, ठीक है, और ये चेक किया है वेदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट. ठीक है, देन ओनली वी कैन से व्हाटएवर दैट वी हैव, इफ इट सेटिस्फाइज देन आवर assumption इज ओके. अगर नहीं है देन वी हैव टू अगेन गो फॉर सेकंड ट्रायल, मतलब दूसरा कुछ एज्यूम करके फिर से कैलकुलेट करके FB इज ग्रेटर देन SBM चेक करना है. डिजाइन में तो वही होता है, तुम लोग पैरामीटर चेंज करते रहते हो और फिर फाइनली एक चेक करते हो कि इससे सेफ है कि नहीं है. ओके, तो सेम यहाँ पे भी सिंपल फंडा यही है, ओनली यही है कि ये इक्वेशन बहुत बड़ा है और यहाँ पे जो जो पैरामीटर्स रहेगा उसका वैल्यूज तुमको याद रखना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस इस पैरामीटर कि क्या क्या वैल्यूज है इन सबका. तो SBM क्या बोले थे, दिस इज द मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस. ओके, मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस. यस मैम. S का मतलब स्ट्रेस है, B है बियरिंग, दिस इज मैक्सिमम. ओके, मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस बिटवीन कंक्रीट एंड डावल बार इन यूनिट क्या है, kg/cm². M सफिक्स क्या है, मॉड्यूलस ऑफ डावल कंक्रीट इंटरैक्शन. ओके,
तो इसका जो मॉड्यूलस है कंक्रीट और डावल इंटरेक्शन का, विच इज डिनोटेड बाय m सफिक्स c एंड यूनिट इज व्हाट, kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इफ क्वेश्चन में नहीं दिया है mc का वैल्यू, वी हैव टू एज्यूम दिस वैल्यू 41500, यू कैन नोट इट डाउन आल्सो, ओके। mc का अगर डाटा नहीं है तो वी हैव टू एज्यूम दिस वैल्यू, ओके। pt हम लोग बोले थे, pt क्या है, इट इज द लोड ट्रांसफर बाय द फर्स्ट डावल बार, एंड वी नो दैट कि फर्स्ट जो फ्रॉम द एज जो फर्स्ट डावल बार होता है, ये जो डावल बार है फ्रॉम द एज, इट विल कैरी मैक्सिमम लोड, ठीक है। दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन, जब लोड एकदम यहाँ पे होता है वही हमको कंसीडर करना है क्रिटिकल, ठीक है। अब उसमें ये वाला सबसे ज्यादा ट्रांसफर करेगा, ओके। सो इसीलिए इसका नाम क्या है, सी मैक्सिमम लोड ट्रांसफर बाय द डावल बार और द लोड ट्रांसफर बाय द फर्स्ट डावल बार फ्रॉम द एज, यूनिट केजी में है, ओके। दिस विल बी अननोन टू अस, पीटी हमको नहीं पता रहेगा, वी हैव टू कैलकुलेट। हाउ वी विल कैलकुलेट, वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, ये जो बोले थे हम, ठीक है, ये वाला इक्वेशन हमको यूज करना है, ओके। दूसरा क्या है, बी, देखो यहाँ पे कहाँ पे बी आएगा, आएगा ये अभी बोल रहे कि बी कहाँ पे आएगा, स्मॉल बी इज व्हाट, डाया ऑफ द बार, ओके, डायमीटर ऑफ द बार, यूनिट है सेंटीमीटर, अगेन वी हैव टू एज्यूम, दिस इज द assumption, 2.5 to 3.2, ओके। यस मैम। जेड क्या है, जेड इज विड्थ ऑफ द जॉइंट, मतलब जो एक्सपांशन जॉइंट का विड्थ, वो भी वही है, मैक्सिमम 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ES इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये S है तो स्टील डावल का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम किस चीज का निकाल रहे हैं, SBM डावल बार का निकाल रहे, तो ES यहाँ पे जो भी ES होगा दैट इज ऑफ द डावल, ठीक है, इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डावल, अगेन वी हैव टू एज्यूम दिस डाटा, ओके। कितना है, 2 × 10⁻⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। I, कैपिटल I जो यहाँ पे है, देखो दिस I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डावल बार, वी नो डावल बार क्या है, एक सर्कुलर है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला है, देखो, ठीक है, पाई b टू द पावर 4, b क्या था, डायमीटर, राइट, डायमीटर ऑफ द बार, पाई b टू द पावर 4 by 64, सो सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 4 × 10 टू द पावर 4, ओके। बीटा इज व्हाट, यहाँ पे देखो बीटा है, दिस इज द रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ डावल बार एम्बेडेड इन द कंक्रीट एंड इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, देखो बीटा का ये इक्वेशन है, ठीक है। E is the elastic modulus of steel dowel bar, if not given assume 2 × 10⁻⁶, I is your moment of inertia of dowel bar which is given by this, okay। B यहाँ पे क्या है, B is the diameter of the dowel bar, ठीक है। तो पहले ये वाला इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट तुमको क्या चाहिए, I निकालो, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द I वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाले में, बीटा निकालो। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वी हैव टू एज्यूम B, पहले डायमीटर एज्यूम करना है, ठीक है, फिर उसके बाद I निकालो, I को फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑल डाटाज विल बी आइदर एज्यूम करो या दिया हुआ था वो यूज करके बीटा निकालो, देन यहाँ पे I, ES बीटा वैल्यू, ठीक है, MC अगर नहीं दिया है तो इतना है 41500, ठीक है, बीटा कैलकुलेट हो गया, Z इट विल बी गिवन एक्सपांशन जॉइंट गैप, ठीक है, एंड लास्ट में बचा क्या, ओनली PT बचा। अब PT के लिए वी नो दैट वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, ओके। अब ये भी कितना दूर तक ऐड करना है, फॉर गेटिंग दिस PT व्हाट वी हैव टू डू, L वी मस्ट नो, ठीक है, यहाँ पे 40% ऑफ व्हील लोड, डिजाइन व्हील लोड होगा, ओके, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, ये भी दिया रहेगा, ओके। सो 40% ऑफ P, तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमको PT के लिए, P का वैल्यू इट विल बी गिवन, ओके। S का वैल्यू ये वाला एज्यूम करना है, S का वैल्यू वी हैव टू एज्यूम, ओके। L इट विल बी प्रोवाइडेड, और नहीं है तो L का जो फॉर्मूला है वहां से हम लोग का L भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो बचा क्या, देखो L पता है, S पता है, 40% ऑफ P भी पता है, तो अननोन इज ओनली PT, ठीक है। तो PT को कॉमन लेकर एक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, वी विल गेट PT आल्सो, ओके। सो लाइक दिस वी हैव टू कैलकुलेट SBM, ये क्लियर है कि नहीं है, ये करना क्या है, देखो SBM का ये है फॉर्मूला। अब इसमें क्या क्या नोन चाहिए हमको, बीटा चाहिए, I चाहिए, I के लिए क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, डायमीटर के लिए वी हैव टू एज्यूम, ओके, एज्यूम द डायमीटर। यहीं पर भी तो हम लोगों ने एज्यूम स्टार्ट किया, एजम्पशन अपना स्टार्ट किया, राइट, कि हम अच्छा इतना डाय का लेते, चलो देखते कितना होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर PT कैलकुलेट करेंगे, सब वैल्यू को पुट करके वी विल गेट SBM, यूनिट इज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्ट्रेस है, राइट, स्ट्रेस का यूनिट इज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ
अब दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप है अलाउएबल बियरिंग स्ट्रेस निकालो, FB। ओके, बियरिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, अलाउएबल बियरिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, ये क्या है, रिजिड पेवमेंट है ना, तो कंक्रीट का ही बियरिंग स्ट्रेस निकालना है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बोले थे, दिस इज द कैपेसिटी, खुद का कैपेसिटी, कंक्रीट स्लैब का कैपेसिटी कितना है वो, ठीक है, दैट इज FB, राइट। तो FB किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट्स इनर स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दिस इज नाउ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये जो FCS है तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, यूनिट इज अगेन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 40 M40 ग्रेड कंक्रीट दिया गया है, देन योर FCS विल बी 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 30 है तो 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा लिख देना है। ओके, यहाँ पे now 10.16 minus B is what, again diameter of the dowel bar and 9.525, ये दोनों इक्वेशन से हमको FB और क्या बोलते हैं SBM निकला है। नाउ फॉर डिजाइन टू बी सेफ ये वाला सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अगर नहीं करता है देन व्हाट हैव टू वी हैव टू डू, वी हैव टू अगेन चेंज द डायमीटर, और रादर यू कैन कीप द डायमीटर सेम, वी हैव टू चेंज द स्पेसिंग, जो पहले भी किए थे हम लोगों ने, स्पेसिंग यहाँ पे चेंज करके PT का एक नया वैल्यू फिर से कैलकुलेट करके यहाँ पे बिठा देना है। ओके, देन अगेन वी विल सी वेदर आवर SBM is okay or not. Okay, क्लियर है स्टेप्स क्या क्या है, एक्चुअली सिर्फ दो फॉर्मूला को निकालना है और चेक करना है, बट इन ऑर्डर टू गेट दैट फॉर्मूला वी हैव टू एज्यूम पैरामीटर्स लाइक डायमीटर, क्या बोलते हैं उसका, स्पेसिंग ऑफ डावल बार ग्रुप, ये सब, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला देखो, the design thickness of cement concrete pavement is 26 centimeter. Please note it down. Okay, H दिया है कितना, 26 centimeter. Okay, considering the axle load of 12,000 kg. Please remember axle load कौन सा है, अगर ये व्हील है, ठीक है, ऐसा व्हील है, ठीक है, पीछे से तुम देख रहे हो गाड़ी का एक्सल है ये ना, ये है, ठीक है। तो एक्सल लोड इज बेसिकली ये जो एक्सल है इसमें कितना लोड आ रहा है, तो बोला है कितना आ रहा है, 12,000 kg आ रहा है। ओके, सो व्हाट विल बी द व्हील लोड देन, क्या होगा, ये लोड जाके ट्रांसफर होके इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, जिससे नीचे की तरफ लोड ट्रांसफर होगा, पेवमेंट की तरफ ट्रांसफर होगा लोड, डिवाइडेड बाय 2। Yes, so 6,000. Okay, so wheel load P is your P, यहाँ पे जो wheel load चाहिए हमको कैलकुलेशन में 6,000 है। ओके, ओके, तो क्या क्या दिया है, और कंसिडरिंग द डिजाइन एक्सेल लोड ऑफ दिस मच ऑन अ सिंगल एक्सेल, ठीक है, एंड M40 कंक्रीट, तो M40 कहाँ पे यूज होगा, FB कैलकुलेशन में। देखो M40 के लिए FCS इक्वल्स टू 400, तो यहाँ पे FCS का वैल्यू 400 बिठेगा इन दिस केस ऑल्सो। ओके, तो द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस थी ऑलरेडी गिवन, तुम लोग को पार्ट पार्ट करके भी एग्जाम में दे सकता है कि ये L का वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है, तुमको दिया देगा नहीं, बोलेगा L का वैल्यू निकालो, कुछ उसके लिए जो जो डाटा है वो इधर एज्यूम कर लो या दे विल प्रोवाइड, ठीक है। सो बट हियर इन दिस केस इट इज गिवन, सो दिस इज योर स्मॉल l। ओके, इफ इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ डावल बार स्टील इज दिस मच, ये भी तुमको दे दिया है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा 2 × 10⁶ क्या है तुम्हारा, ये है, ये जो मॉड्यूलस ऑफ डावल बार, ये जो है, सॉरी ये कहाँ का है, ये वाला ES है, ये है। ओके, इफ नॉट गिवन एज्यूम करना है हमको, ठीक है। और क्या क्या दिया है, दिस इज ES, मॉड्यूलस ऑफ डावल कंक्रीट इंटरैक्शन, दिस इज M∪C, see they have already given, otherwise you have to assume those data। okay, joint width is this much centimeter, ठीक है, joint width वहां पे देखना Z से सिंबलाइज किया गया है। ओके, तो फॉर्मूला में Z से सिंबलाइज किया गया है। नाउ यूजिंग दिस डाटा डिजाइन द डावल बार। ओके, तो पहले नोट डाउन करो तो क्या क्या दिया है, प्लीज नोट इट डाउन। देखो
तुम्हारा एक्सल लोड है 12,000 kg, ठीक है, तो उस हिसाब से विल लोड P विल बी 6,000 kg, मतलब एक तरफ 6,000 जाएगा, एक तरफ 6,000 जाएगा, तो टोटल विल बी 12,000. ओके, सो कैपिटल P इज योर 12,000, ठीक है. M40 कंक्रीट दिया है, सो योर FCS विल बी 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. So FCS is 400 kg per centimeter square. Okay. L लिखो, L small l is 62.2 centimeter. Small l is 62.2 centimeter. Okay. Yes, ma'am. Okay. E capital E suffix S is 2 into 10 to the power 6. E suffix S is your 2 into 10 to the power 6 kg per centimeter square. Okay. And M suffix C is your 41500 kg per centimeter cube. And your Z is 1.8 centimeter. Okay. ठीक है, अब हमको क्या क्या एज्यूम करने के लिए बोले थे. फर्स्ट वी नीड टू एज्यूम तुम्हारा डायमीटर, ठीक है. डायमीटर कितना से कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर टू 3.2 सेंटीमीटर. ये जो मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 2.5 टू 3.2 के अंदर होना चाहिए. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना एज्यूम किया है, डायमीटर अच्छा, यहाँ पे हमने डायमीटर 3 लिया है. ओके, तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू. हमने थोड़ा मोटा वाला ले लिया है, 3 सेंटीमीटर ले लिया. तुम लोग यही लेकर ही करो फॉर प्रैक्टिसिंग. ओके, तो ये आंसर भी रेडीमेड है तो समझ में आएगा. सो टेक डायमीटर एज 3 सेंटीमीटर, ठीक है. सी यहाँ पे एज्यूम किया, टेक डायमीटर एज 3 सेंटीमीटर एंड स्पेसिंग हम लोग का कितना होना चाहिए, 25 टू 30 सेंटीमीटर तक होना चाहिए. सो टेक डायमीटर बी, डायमीटर बी है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, देखो बी है 3 सेंटीमीटर एंड स्पेसिंग है 25 सेंटीमीटर. ये एज्यूम कर लो, ठीक है. करके कहाँ पे जाएंगे, करके फर्स्ट स्टेप क्या था, वी हैव टू कैलकुलेट SBM. ओके, SBM कैलकुलेट करना है. सो यूज दिस इक्वेशन. देखो SBM का ये इक्वेशन है. ओके, सो इस इक्वेशन में MC चाहिए था, इट इज ऑलरेडी गिवन 41500, ठीक है. Z चाहिए था, Z इज 1.8 सेंटीमीटर, ओके, गिवन. ES चाहिए था, ES इज 2 into 10 to the power 6, इट इज ऑल्सो गिवन, ठीक है. अब बाकी बचा क्या, PT बीटा I, राइट, PT बीटा I. तो सबसे पहले बीटा के लिए हमको क्या चाहिए, I चाहिए, राइट. जैसे यहाँ पे E पता है, B एज्यूम कर लिया हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर, MC गिवन, बट यहाँ पे I अननोन है, तो I के लिए क्या चाहिए, फिर ये वाला इक्वेशन है. सो पाई 3 to the power 4, B is what, diameter of the dowel bar, so pi into 3 to the power 4 by 64. I कितना आ रहा है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, सेंटीमीटर टू द पावर 4 होगा, 3.97. 3.97. व्हाट अबाउट द अदर्स, बाकी लोग का कितना आ रहा है, कितना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है. अच्छा तुम ही तापर एटा बार करो, बीटा निकालो तो कितना आएगा. ओके मैम. अनिमेश और कौन कौन है यहाँ पे, रूपम, सौरभ, शौबिक, अनिश, अनमोल, प्लीज रेस्पॉन्ड. তোমরা কি করো গো, চুপচাপ বসে থাকো. हाँ मैम बोलो. कितना आ रहा है आई का वैल्यू, हाँ मैं कर रहा. ठीक है हम भी कर रहे, करो. मैम आई का वैल्यू 3.97. हाँ 3.97. यूनिट क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर. सेंटीमीटर टू द सेंटीमीटर पावर पर 4. देखो b का टू द पावर 4 है ना, तो b का क्या यूनिट है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर टू द पावर 4 होगा. सेंटीमीटर. हाँ 64, 3.977, ठीक है.
अब ये वाला आई Yes, का ma'am. वैल्यू यहाँ पे बिठाओ, यहाँ पे बिठाओ। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है तुम्हारा मैम 0.25। अच्छा 41500। ठीक है, बाकी लोग भी करो, चेक करो वही है कि नहीं है। ये है ई का वैल्यू 2 × 10⁻6 है। ठीक है, ये है तुम्हारा 3.97। ठीक है, और ये तो एज्यूम किया था हम लोगों ने 3 बी का। सो दिस मैम एमसी तो 41600 है। एमसी 4150 है। ठीक है, 41500। अगर नहीं दिया है तो भी ये एज्यूम करना है। देखो यहाँ पे ओके मैम। ओके, ओ 60 नहीं है, 50 है। ओके, ओके मैम। so this into 2 Yes, into ma'am. 10⁻6 into 4 into 41500 into 3 to the power 0.25 0.25 आ रहा है बेटा? यस मैम 0.25। Yes, ma'am. Ma'am. 0.25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको क्या क्या मिल गया, ये पता है, बीटा भी मिल गया, जेड भी पता है, आई भी पता है, ये भी पता है। बचा क्या? पीटी। नाउ फॉर पीटी यूज दिस इक्वेशन अगेन। देखो ये इक्वेशन यूज करना है। सो इन दिस केस एल कितना है? एल इज 62.2, राइट? एल का वैल्यू कितना था? Yes, ma'am. 2.2. 62.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एस हम लोगों ने एज्यूम किया कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये P कितना है? P का तो हमको पता है 6000 था, ये वाला, सॉरी ये 6000 है, 6000 kg। सो 40% ऑफ 6000 kg कितना होगा? 2400 होगा। तो यहाँ पे L पता है, S पता है। अब PT निकालो। अब देखना ये एडिशन कितना दूर तक जाना है। ये एडिशन कितना दूर तक जाएगा? जब तक तुम्हारा ये वैल्यू, न्यूमरेटर वाला वैल्यू 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तब तक। तो देखो ये वाला में क्या होगा? फर्स्ट केस में तुम्हारा तो L इज योर 62.2 माइनस 25 पॉजिटिव है। ठीक है, फिर L इज 62.2 माइनस 2 into 25 विच इज 50। तो 62 माइनस 50 इज अगेन पॉजिटिव। ठीक है, L इज 62.2 माइनस 3 into 25 75। ठीक है, तो 62.2 माइनस 75 नेगेटिव। तो ये वाला तक हम, ये वाला नहीं लेना है, तो हमको सिर्फ ये चाहिए, राइट? Yes, ma'am. 300 चाहिए। ठीक है, और 3 ऐड कर लो यहाँ पे। पीटी को कॉमन ले लो, तो पीटी को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पीटी बाहर आएगा, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस L माइनस S बाई L प्लस L माइनस 2S बाई L करके इक्वल्स टू 40% ऑफ P। P इज व्हाट? P इज 6000। तो पीटी कितना आएगा? कितना केजी? पीटी का यूनिट, ये जो लोड का क्या है? पीटी क्या था? लोड ट्रांसफर है। सो लोड यहाँ Yes, पे ma'am. यूनिट क्या? केजी है, तो पीटी विल बी आल्सो इन केजी। चलो तो कहते हैं कितना आएगा? 62.2 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 62.2 इतना है, प्लस 2.2 माइनस 50 62.2 प्लस 1 इतना आएगा। मैम पीटी का वैल्यू 960। 960 देखो আমার তো 485 858 আসছে না, কত আসছে देखो, गलत भी हो सकते हैं, हम देखते हैं। ओके, देखते हैं कितना आ रहा है। फिर चेक करके देख रहे हैं। इतना आ रहा है क्या? ম্যাম 2400। 133 হ্যাঁ ম্যাম ওটা 1337 ঠিক আছে। हाँ ठीक है, देखो ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो कुछ नहीं, देखो 62.2 माइनस S इज 25/6 ये। ठीक है, तो पीटी आ गया। अब एमसी निकाल दो, एसबीएम निकालो।
सी दिस इज द आंसर। ओके, पीटी इज इक्वल्स टू 1337.8 kg। ठीक है, यहाँ से एसबीएम निकालो अब। दिस इज द इक्वेशन, सब निकल आया हमको। ठीक है, बीटा भी पता था 0.25, पीटी इज 1337 kg, एमसी 41500। ठीक है, आई इज 3.977, ईएस इज 2 × 10⁻6 करके कितना आ रहा है एसबीएम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। কত আসছে? 274.0. 274.0 see 273 approximately 274। ओके, तब का ये आया कि नहीं आया? देखो 4150 पीटी 1337.8 2 × 0.25 × 1.8 जेड गिवन था, बीटा कैलकुलेट किए, ये भी गिवन था, ये भी कैलकुलेट किए करके एसबीएम इतना आ रहा है। क्लियर? अब तुमको सेकंड क्या था? सेकंड वो था तुम्हारा एफबी निकालो। एफबी के लिए क्या क्या चाहिए था? देखो एफबी के लिए सिर्फ एफसीएस और बीटा चाहिए, बी चाहिए। एफसीएस इज M40 के लिए 400, बी है तुम्हारा एज्यूम किया था 3, कितना आएगा ये? तो 10.16 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9.525 इंटू 400, 300 आ रहा है। ये है 400 एंड ये है तुम्हारा 3। देगा दिस इज 400 300.6. हाँ 300.6। ठीक है, वो भी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लोग का एसबीएम कितना है? देखो सेफ है कि नहीं है हम लोग का, बोलो इज इट सेफ? एसबीएम इज दिस मच, Yes, ma'am, एसबी इज दिस safe. मच। मतलब ये एक्सटर्नल जो प्रेशर जो आ रहा है तुम्हारे ऊपर ये है, और तुम्हारा खुद का कैपेसिटी कितना है लेने का, ये है, तो वो ज्यादा है। देखो बाहर से टेंशन आएगा भी तुम टैकल कर लोगे, सो यू विल बी सेफ। तो our design is then safe। okay, so the dowel bar design is here in his hands safe, and the design parameters मतलब क्या क्या हम लोगों ने assume किया था? diameter 3 cm, spacing 25 cm, may be provided an expansion joint, और length यहाँ पे डिजाइन नहीं किया, लेंथ हम लोगों ने 500 ही मैक्सिमम किया है। ओके, और उससे ज्यादा नहीं करना है हमको। इन दिस केस लेंथ का कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ओल्ड मेथड में लेंथ का इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था। ओके, सो क्लियर? देखो Yes, किसी ma'am. में अगर हो सकता है कि डायमीटर 2.5 मतलब छोटू सा डायमीटर तुम करके जाओगे, तब तुम्हारा शायद ये थोड़ा सेफ नहीं हो सकता था। ठीक है, इन दैट केस तो क्या करोगे? इजीली आ गया, राइट? तो इन दैट केस अगेन यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, तुम अगर बोलोगे डायमीटर हम 2.5 का ही लेंगे, लेकिन हम नंबर्स बढ़ा देंगे। नंबर्स बढ़ा देंगे मतलब नंबर्स आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम लोग स्पेसिंग को जो वैल्यू लिए थे उसको कम कर देना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या किए थे हम लोगों ने? स्पेसिंग मिनिमम ही लिए थे, राइट? स्पेसिंग हम लोगों ने मिनिमम ही करके लिए थे, उससे और कम नहीं कर सकते थे। तो ऑब्वियसली तुमको डायमीटर ही चेंज करना पड़ेगा। ओके, इन दैट केस अगर स्पेसिंग बहुत ज्यादा लिया, डायमीटर 2.5 लिया, मतलब सपोज स्पेसिंग तुमने 30 लिया और डायमीटर क्या बोलते हैं 2.5 करके लिया था, तो क्या हो जाएगा? तब भी अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता, तब हमको स्पेसिंग थोड़ा रिड्यूस कर देना चाहिए। ओके, बट ये वाला हम लोग का एजम्पशन इट इज सेफ। ओके, तो फिर दिस इज द मेथड कि ऐसे Yes, ma'am. तुम लोग को करना है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस तुम लोग को जो प्रीवियस ओल्ड मेथड का डाटा ही देता है। अभी तक क्वेश्चन में, सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर में हमने ये वाला मेथड का कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। ठीक है,
सो इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि तुम लोग ओल्ड मेथड यूज करोगे या ये नया मेथड भी यूज करोगे। देखो नया मेथड में कुछ ऐसा कुछ तुमको चाहिए नहीं है। ओल्ड मेथड का अगर फॉर्मूला याद नहीं कर सकते तो तुम्हारा तो ये सब तो क्या बोलते हैं IRC 58 में ऑलरेडी फॉर्मूलाज है। ओके, सो यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो। ओनली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एज्यूम दिस एंड दिस डाटा। तब तुमको ये सब नहीं दिया रहेगा, MC बोल के नहीं रहेगा तब, ठीक है, ES बोल के भी नहीं रहेगा। तब क्या करोगे, तब यू हैव टू एज्यूम दिस डाटा एंड खुद ही अपना अपना कर लेना है, बट मेंशन कर देना कि दैट यू हैव फॉलोड द न्यू मेथड, ओके, एज पर IRC 58। क्लियर? यस मैम। ओके देन, थैंक यू। आज के लिए इतना ही है। और लास्ट Thank एक you. टॉपिक बचा है इस पेपमेंट डिजाइन का, ठीक है, तुम्हारा वो है, नेक्स्ट वीक। हाँ नेक्स्ट वीक होगा, विच इज द डिजाइन ऑफ द रिजिड पेपमेंट। पूरा डिजाइन इसमें पूरा Okay, ma'am. जितना भी पढ़ के आए हो सब कुछ रहेगा। ओके मैम। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम। Thank you, ma'am. वेलकम।